Hello friends, good morning to all of you. Today we will solve the numericals which is related to electric charge. In previous classes we have studied about electric charge, introduction of electric charge, electron theory of electric charge and basic property of electric charge. So let me continue numericals which is related to electric charge, and that numericals is very important for board exam. Okay, so we continue numericals, or that numericals is related to electric charge. This numericals based upon class 1 to class 7. Okay, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? A liquid drop has 20 excess electron, then calculate the electric charge on that liquid drop. Okay, a liquid calculate charge. चलिए तो ध्यान देंगे, a liquid drop has 20 excess electron. कोई liquid drop है जिस पर 20 excess electron है. 20 excess electron मतलब 20 अधिक इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई liquid drop है उस पे 20 electrons excess है, अधिक है. तो करना क्या है? तो then calculate the charge on liquid drop. तो उस liquid drop पर कितना चार्ज है? तो ध्यान देंगे ये जो चार्ज है वो एक्सेस चार्ज पूछा जा रहा है. तो ये बताइए कि जितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही एक्सेस चार्ज होगा. तो हाउ कैन वी फाइंड चार्ज ऑन अ बॉडी? तो वी कैन फाइंड चार्ज ऑन अ बॉडी बाय अ फार्मूला व्हिच इज q इक्वल टू प्लस माइनस ne. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन टर्म. व्हाट इज गिवन टर्म? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 20 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिक चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है कि लिक्विड ड्रॉप पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो 20 है. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो 1.6 into 10 to the power minus 19, और टोटल चार्ज पूछ रहा है. तो वी कैन सॉल्व q equal to ne. q equal to n 20 है एक्सेस इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19. मल्टीप्लाई कर सकते हैं. q equal to 20 into 16 divided by 10. ये डेसिमल हटेगा तो 10, और 10 to the power minus 19. 0 0 कैंसिल. q equal to 16 to the 32 into 10 to the power minus 19 कूलम. Okay, so this is the charge on a body which having 20 excess electron. Okay, so with the help of this formula we can decide amount of charge on a body. Okay, that is known as quantization of charge. In quantization of charge we have studied about q equal to plus minus na. With the help of this formula we can decide the amount of charge on a body. Okay, right now हो गया. तो कह रहा है कितना? अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? तो नेगेटिव. इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 into 10 to the power minus 19 कूलम. ये भी सही है. या आप यहाँ पर माइनस ले लेते तो माइनस में रिजल्ट आता. माइनस हम लोग जनरली नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर नंबर इलेक्ट्रॉन्स का बताना होता है तो नंबर नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए माइनस का यूज नहीं करते. लेकिन बॉडी पर जब चार्ज बताना होगा तो माइनस लेना होगा, ताकि ये मालूम चले कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. ओके, तो आप यहाँ भी माइनस ले सकते थे, यहाँ माइनस ले लीजिए, यहाँ माइनस ले लीजिएगा तो रिजल्ट में आ जाएगा. ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. a body
carried 12.5 into 10 to the power 8 electrons, then calculate amount of charge on that body. कह रहा है कि a body carried 12.5 into 10 to the power 8 electrons. कोई बॉडी है जो अपने ऊपर इतना इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, तो करना क्या है, कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट बॉडी, उस बॉडी पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, ओ सॉरी यहाँ पर calculate the amount of charge on that body. Okay, so we can solve. How can we solve? तो first of all we write given data. The number of electrons कितना है, तो 12.5 into 10 to the power 8 electrons. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हैं 1. इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, तो यहाँ पर माइनस कंसीडर कर लेते हैं 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और अमाउंट ऑफ चार्ज हमको फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे, Q equal to NE, Q equal to number of electrons 12.5 into 10 to the power 8 and electron per charge minus 1.6 into 10 to the power minus 19. Solve them. 1 to 5 डेसिमल हटेगा, 0 नीचे, 10 to the power 8 डेसिमल हटाइए, ये देखिए माइनस और प्लस, माइनस को आगे कर देंगे, ये होगा 16/10 और 10 to the power minus 19. सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं कि 5 to the 10, 5 to the 10, 5 5 the 25, and here 2 8 the 16. ओके, तो Q equal to, यहाँ से और कर सकते हैं 2 5 जा और 2 4 जा, तो 25 4 जा कितना होता है 100 into 10 to the power 8, ओके, into 10 to the power minus 19 और डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 5. 5 20 100, the amount of charge 20 into 10 to the power 8 into 10 to the power minus 19. Q equal to, ध्यान देंगे 8 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर है, तो 19 में से 9 0 माइनस कर देंगे, तो 2 into 10 to the power 9 minus 19, तो Q equal to कितना 2 into 10 to the power minus 10 कूलम. ओके, so that is the amount of charge on that body, and we add minus for electron. Okay, write down. चलिए नेक्स्ट, तो ये आपने समझा होगा किसी बॉडी पर इतना इलेक्ट्रॉन है, तो बताना था कि उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है. तो वही सिंपली फार्मूला जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, Q equal to NE, और बस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो कितना है -2 into 10 to the power minus 10 कूलम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3. All of these questions are very basic, okay, because it is related to only electric charge. After that we will discuss about electric field, electric potential, and various term, and then we solve various type of numericals related to electric field and potential. Okay, so third question is calculate the number of electrons in 3.2 coulomb of charge.
calculate number of electrons in 3.2 coulomb. Calculate number of electrons in 3.2 coulomb of electric charge. कह रहा है कि 3.2 कूलम्ब का कोई चार्ज है। अब आपको ये बताना है कि 3.2 कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है। ओके, तो हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो वी हैव अ फार्मूला Q equal to Ne. With the help of them we can determine. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है? तो Q equal to 3.2 कूलम्ब। ओके, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑलरेडी जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब आप बोलेंगे सर माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि नंबर डिसाइड करना है और नंबर नेगेटिव नहीं होगा, तो आप लेंगे तो लास्ट में उसको हमको हटाना होता है। तो यहाँ लेंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ तो चार्ज बताना नहीं है, नंबर बताना है और नंबर नेगेटिव नहीं होगा इसलिए। तो n बताना है, n फॉर नंबर। तो यहाँ पे हमने बोला कि एक बॉडी है, इस पर बोला गया कि 3.2 कूलम्ब का चार्ज है, तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास Q equal to Ne और N equal to Q/E। चार्ज कितना है? 3.2 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होगा, 16 2 जा 32 और n equal to 2, ये 10⁻19 को ऊपर भेजिए और ये ऊपर जाकर प्लस में। तो 3.2 कूलम्ब में चार्ज में 3.2 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि 3.2 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो एक कूलम्ब में कितना होता है कि हमने पढ़ा था, तो एक कूलम्ब में होता है 6.25 × 10⁻18। अब इसके बाद जितना कूलम्ब में पूछे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ओके, दैट इज द मेथड, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमको बताना है कि एक कूलम्ब चार्ज का, ध्यान देंगे, एक कूलम्ब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अधिक होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अधिक होता है, हमको ये बताना होता है। तो लिखेंगे which is bigger, one coulomb of electric charge or charge on an electron। कह रहा है कि which is bigger, कौन बड़ा है? एक कूलम्ब में चार्ज इलेक्ट्रॉन का बड़ा है या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान देंगे, एक कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज, तो एक कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 6.25 × 10⁻18 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। तो ऑब्वियसली है कि 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अधिक होगा और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन लेस होगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं। 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो 1 कूलम्ब में इलेक्ट्रिक चार्ज हमको बताना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होता है? तो
तो 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतना इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाते हैं क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड लेना होता है। अब ध्यान देंगे एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो हमने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाइए 625 100 10 to the power 18 16 divided by 10 और 10 to the power minus 19 सॉल्व कर लेते हैं। 25 4 जा and 25 625 हो गया, 4 4 जा 16 25 into 400 10 to the power 18 है, कैंसिल कर दीजिए 17 हो जाएगा और 10 to the power minus 19। तो ये 17 और 2 19, 10 to the power 19 और पीछे 10 to the power 19 बेस सेम रहता है, तो जो पावर रहता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 to the power 19 minus 19 तो 10 to the power 0 और किसी भी डिजिट के ऊपर 0, किसी भी नंबर के ऊपर 0 रहेगा तो वैल्यू कितना होता है 1। 1 क्या कूलम। तो आपने देखा 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना आ गया 1 कूलम का चार्ज आ गया। अब आपसे पूछा गया कि ये तो आपने निकाल लिया कि 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पर कितना चार्ज होगा, तो 1 कूलम, और 1 इलेक्ट्रॉन पर कहाँ, इसको यहाँ लिखते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है माइनस, माइनस हटाइए, मैग्नीट्यूड लेते हैं 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब देखिए ये अगर डिवाइड में आता है तो कितना लेस होता है वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ये 1 से भी छोटा है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is greater than charge on an electron। ओके, कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1 कूलम के चार्ज से लेस होता है। ओके, बिकॉज 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन 6.25 into 10 to the power 18 electrons and for 1 electron the charge will be 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, which is very less. Okay, so write down चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 5 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या होगा, आपको जस्टिफाई करना होगा कि उतना इलेक्ट्रॉन एग्जिट होता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, कैन an object have 2.8 into 10 to the power minus 18 coulomb of electric charge? Can an object have 2.8 into 10 to the power minus 18 coulomb of electric charge or not? Justify your answer. Justify your answer. Justify करना होगा, बताना होगा क्यों। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पे क्या इतना चार्ज हो सकता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि किसी भी बॉडी पर मिनिमम कितना चार्ज होता है, तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो अगर उस चार्ज से डिवाइड करें तो हमको ये मालूम चलेगा कि किसी बॉडी पर इतना चार्ज होगा कि नहीं। ओके,
तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेते हैं कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, अगर इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास, तो वी हैव गिवन डाटा चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू कितना है, तो 2.8 into 10 to the power minus 18 कूलम। और ध्यान रहे कभी भी न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले हमको यूनिट देखना होता है कि यूनिट कैसा है, चेंज करना पड़ेगा। ये गिवन डाटा को लेकर हम बना सकते हैं और क्या क्या दिया है और क्या हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ते समय देखा कि इतना कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कूलम लगा है इसका मतलब कि ये चार्ज है, तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया। और कूलम कौन सा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट। कूलम इक्वल टू क्या होता है, तो एम्पीयर इनटू सेकंड होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। हमको जस्टिफाई क्या करना है कि किसी भी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं। तो if we find the number of electrons then we can justify amount of charge on the body। तो n equal to what, n equal to what, तो q equal to n, तो n equal to q by e। कितना है q, 2.8 into 10 to the power minus 18 और 1.6 into 10 to the power minus 19। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होगा, ये कितना होगा, तो ये होगा 28 डिवाइडेड बाई 16 और 10 टू द पावर माइनस 18, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 90। तो n इक्वल टू 28 बाई 16, तो 4 7 जा 28, 4 4 जा 16। If we divide we can find 1.75 into 10 to the power 19 में से 18 जाएगा तो 1 0 बचेगा, 10 ही बचेगा। ओके, तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करते हैं तो n इक्वल टू, इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो n इक्वल टू 175 बाई 100 into 10, 0 0 कैंसिल, 1 इक्वल टू 17.5 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि 2.8 into 10 to the power minus 18 कूलम किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किया जाए ताकि मालूम चल जाए कि ये किसी बॉडी पर चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो याद कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब किसी भी बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, 10 इलेक्ट्रॉन का होगा, 50 इलेक्ट्रॉन का होगा, 100 इलेक्ट्रॉन का होगा, 18 इलेक्ट्रॉन का होगा, 17 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 17.5 इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, जिसको 17.5 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड, इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि डेसिमल में है 17.5 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 17 रहता तो लेते, कंसीडर करते, 18 रहता तो भी कंसीडर करते, लेकिन 17.5 कंसीडरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो वी कैन से दैट कि 2.8 into 10 to the power minus 18 coulomb of electric charge does not exist on a body according to the quantization of electric charge। लिख सकते हैं 2.8 into 10 to the power minus 18 coulomb of electric charge does not exist on the body according to quantization
ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो हमने जस्टिफाई कर दिया कि सर इतना किसी भी बॉडी पर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। अगर ये 17 रहता तो होता, 18 रहता तो भी होता, लेकिन 17.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको हमने जस्टिफाई कर लिया कि 2.8 into 10 to the power minus 18 coulomb of electric charge does not exist on the body according to the quantization of electric charge. Right. चलिए आते हैं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 में आते हैं। When देखते हैं इसको। When a conductor emitted 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन, emit मतलब निकालना होता है। कोई कंडक्टर इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है अपने बॉडी से, emit करता है, निकालता है। Then find the charge on the body, हमको क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज। ओके, तो ये तो मालूम चल गया कि अमाउंट ऑफ चार्ज हमको निकालना है यहाँ से। अब क्या कह रहा है कि एंड आल्सो फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज मास ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि मास जो इंक्रीज करेगा, क्योंकि ध्यान देंगे जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो क्या हो सकता है, ये तो मास इंक्रीज करेगा, ये तो डिक्रीज करेगा। तो एक हमको मास ऑफ द बॉडी भी निकालना है, मास ऑफ द बॉडी, और ये कैसा होगा? इंक्रीज और डिक्रीज वाला। तो ये गिवन डाटा में लिखते हैं। सर ये दोनों फाइंड आउट करना है, और दिया क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना? 10 to the power 6। ओके, तो ये बताइए कि हमारे पास एक बॉडी है और इसे कोई बोले कि 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया। तो जब 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाएगा, then find the charge on that body, इस बॉडी पर चार्ज कितना होगा? तो सिंपली है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं, और उस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आपने बोला कि सर उतना डिक्रीज कर जाएगा। अब ये बताइए कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो मास इंक्रीज करता है कि डिक्रीज? क्योंकि ध्यान देंगे यहाँ कर फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज मास, मतलब मास इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, ये भी हमको जानना है। तो यहीं पर उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सर व्हेन अ बॉडी लूज और इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स देन मास ऑफ द बॉडी विल बी डिक्रीजेस। और जो लूज करता है, इमिट करता है बॉडी, वो कौन सा होता है? डोनर होता है, और डोनर पॉजिटिवली चार्ज होता है, और डोनर का मास क्या होता है? मैक्सिमम की मिनिमम, इंक्रीज के डिक्रीज, तो डिक्रीज। डिक्रीज का एरो डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो चुका है। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो पहले चार्ज निकाल लेते हैं, कैसे? तो Q equal to Na से। तो Q equal to n number of electrons 10 to the power 6, 1.6 into 10 to the power minus 19। तो Q equal to कितना होगा? ध्यान देंगे 1.6 और 16 में से 19 में से 16 को माइनस 19 में 6 माइनस कीजिए तो 10 to the power minus 13 कूलम हो गया। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। क्लियर है? तो एक तो हमने फाइंड आउट कर लिया क्या कि फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकलेगा तो इस बॉडी पर कितना चार्ज डेवलप होगा, तो 1.6 into 10 to the power minus 13 कूलम का। कैसा? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी जब इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होता है तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज। ओके, तो बॉडी पर कितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो 1.6 into 10 to the power minus 13 कूलम।
इसके बाद हमको इंक्रीज और डिक्रीज मास फाइंड आउट करना था। तो ऑलरेडी पहले यहाँ डिसाइड कर चुके हैं कि मास इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो आपने बोला कि सर ये तो इमिट कर रहा है, डोनर है, और डोनर का मास क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है 10 टू द पावर 6, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है और इतना बाहर निकला है, तो कितना मास कम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9.1 into 10 to the power 31 में से 6 को माइनस कर दीजिए, कितना होगा 10 to the power minus 25 kg। ओके, तो दैट इज डिक्रीज इन मास। तो पहला सेक्शन ये था हमारा, और दूसरा ये है। समझते हैं कि सर कोई भी बॉडी अगर इतना 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, रिमूव करता है फ्रॉम आवर बॉडी, देन मास ऑलवेज विल बी डिक्रीजेस। और डिक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी कितना होगा, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन का मास और जितना इलेक्ट्रॉन इमिट किया है उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल दिस रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए टोटल हमने अभी 6 क्वेश्चन सॉल्व किया, ये 7 देखेंगे। तो 7 क्वेश्चन क्या है, पहले हम समझते हैं कि सर मेरे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पर 9.6 into 10 to the power 26 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो आपको ये बताना होगा कि किसी भी बॉडी पर इतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be removed for developing 9.6 into 10 to the power 26 coulomb of positively charged। ओके, तो लिखते हैं how many will be removed develop plus 9.6 into 10 to the power 26 coulomb of charge on a body। जानेंगे, कह रहा है कि how many number of electrons will be removed to develop plus 9.6 into 10 to the power 26 coulomb of charge on a body। किसी भी बॉडी पर प्लस 9.6 into 10 to the power 26 coulomb चार्ज डेवलप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल कि सर रिमूव क्यों करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तभी डेवलप होगा जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो वी कैन कैलकुलेट कैसे, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में दिया क्या है हमारे पास, तो दिया हुआ है चार्ज कितना है 9.6 into 10 to the power 26 कूलम्ब। ओके, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। तो नंबर फाइंड आउट करना है, तो n इक्वल टू Q इक्वल टू Na, तो n इक्वल टू Q by E। Q 9.6 into 10 to the power 26 and 1.6 into 10 to the power minus 19।
वी कैंसिल डेसिमल टू डेसिमल और 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन राइट n इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 26 पहले से है, ये माइनस जगह प्लस होगा, और n इक्वल टू 6 9 6 15 2 3 और 4 ओके इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पर प्लस 9.6 इंटू 10 टू द पावर 26 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए उस बॉडी से 6 इंटू 10 टू द पावर 45 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, निकालना होगा। ओके सो राइट डाउन। चलिए आपने लिख लिया होगा, और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question 8. Find the number of electrons in 2 coulomb of charge. Find the number of electrons in 2 coulomb of charge. क्या कह रहा है कि 2 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं, एक तो फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं और दूसरा हमारे पास मेथड कैसे, तो हम लोग जानते हैं, ध्यान देंगे। सर 1 कूलम्ब इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कूलम्ब इक्वल टू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, सिंपली 2 कूलम्ब में कितना, 5 2 is 10, carry 1 2 2 is 4 1 5, और 6 2 is 12 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन हो तो गया। अब जितना मैं पूछूं उतना मैं फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड क्या है आपका, निकालिए, तो Q इक्वल टू Na, N इक्वल टू Q बाई E, ये कितना है 2 डिवाइडेड बाई 1.6 10 to the power minus 19, डेसिमल हटाइए, ये 0 डेसिमल हटेगा 0 ऊपर जाएगा, तो 20/16 और 10 टू द पावर इसको ऊपर ले चलेंगे, प्लस में हो जाएगा, 4 4 जा 16 4 5 जा 20, n इक्वल टू 5/4 डिवाइड किया जाए कितना होगा हमारा, तो ये होगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 ओके। तो n इक्वल टू, अगर इस तरीके से आप लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 1 1 कैंसिल करा देंगे, 1 2 5, ध्यान देंगे यहाँ पे एक 0 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 टू द पावर 19 है, और यहाँ पे 00 ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए, तो n इक्वल टू कितना 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन ओके। और आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद हम लोग 0 दे भी सकते हैं और नहीं भी, इनमें भी अगर आपका इच्छा है तो यहाँ 0 ऐड कर सकते हैं, और नहीं भी देंगे तो कितना होगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हम चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। तो ये जितना हमने आज सॉल्व किया, ऑल ऑफ दिस आर बेसिक न्यूमेरिकल्स, ये बहुत बेसिक होते हैं और जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, ऑब्जेक्टिव का होगा ओके। तो आज के लिए इतना ही।